हेलो बच्चों, माई सेल्फ अमित शर्मा, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एसोसिएटेड विद BBC. So today we are going to study about chemistry. As you already know that in 10th class you have studied a complete science which includes physics, chemistry and biology. But in 11th class we are going to study dedicatedly all the three subjects. So in chemistry I should say that chemistry have a three parts. First part related to physical, second part related to inorganic, and third part related to organic chemistry, and afterwards we can say that fourth part which includes environmental chemistry part or polymer part. Physical chemistry generally deals with the interaction of the molecules, interaction of the elements, that is known as physical chemistry, which is the broadly categorized in our first book. There are the 7 chapters in the first book, we will study thoroughly. Inorganic chemistry deals with the study of the elements, about the mass, about the nature of the element, like we have studied in the 10th class that what type of metals are there, what type of non-metals are there. When we dedicatedly study lithium, when we dedicatedly study sodium, potassium, rubidium, that is comes under the category of the inorganic chemistry. Organic chemistry deals with hydrogen and carbon bond, that is also known as hydrocarbon. So right now I will elaborate them on the board. Just pay attention that chemistry first part is physical chemistry. This physical chemistry deals with interaction between elements, and we can say that is also called molecular interaction. Molecular interaction, how the particles combine with each other, how they behave, what type of liquid, how we can say that how liquid is forms, how gases are forms, how solid is forms, why they are fixed, why they are not fixed. So these types of interaction, how compound is formed, how molecule is formed, these types of nature comes under the category of physical chemistry. Okay, and we also can say that bond formation, that bond formation is also the part of physical chemistry. Bond formation, you know that hydrogen combines with oxygen forms H2O, carbon combines with oxygen forms carbon dioxide. This type of chemistry comes under physical chemistry. Other part is inorganic. As I say that inorganic chemistry deals with the behavior, with the categorized study of the elements. ठीक है सर, बिहेवियर एंड कैटेगराइज स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, जिसका मतलब है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जो फिजिकल केमिस्ट्री हमने अभी बताया है कि आपको विद इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़ते हैं, कार्बन बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये जो सारा का सारा बिहेवियर है आपस में कंबाइन होने का, गैस का बिहेवियर दिखाना है, सॉलिड का बिहेवियर दिखाना है, किस तरीके से वो बिहेवियर दिखाया जाता है, डेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री. ये सारा का सारा भाग फिजिकल केमिस्ट्री का है. इनऑर्गेनिक के अंदर जो मैंने आपको भी लिखा है, बिहेवियर एंड कैटेगराइज स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के बारे में जानना, एटम के बारे में जानना, लिथियम कैसा बिहेवियर दिखाएगा, लिथियम कैसे एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, किसके साथ कंबाइन हो सकता है, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे. ठीक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या है,
आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि कुछ हमने इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जब हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होता है, फिर अलग अलग एलिमेंट के साथ बनकर अल्कोहल बनाता है, फिनॉल बनाता है, ये सारी चीज़ें जो फॉर्म करता है वो किसका पार्ट हो जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, जो कि हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हम दोनों के दोनों हमारे जो सेकंड पार्ट है बुक का सेकंड टर्म के अंदर हमारे पास कोर्स में आता है। इनिशियली जो हमारा पार्ट चलेगा वो क्या चलेगा? फिजिकल केमिस्ट्री चलेगा। तो ये आपने एक बार सारा का सारा मेंशन देखा। फिजिकल केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूलर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिहेवियर एंड कैटेगरी स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द हाइड्रोकार्बन। तो जो आपने इसको समझा, अब हम इंडिविजुअली एक एक चैप्टर को लेकर चलेंगे, जिसमें कि हम आज स्टार्ट करेंगे आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे 7 चैप्टर हैं उसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर है कौन सा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे किस तरीके से एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है, किस तरह से मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड जो होता है वो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि यार दिस सब्सटेंस इज सॉलिड, दिस सब्सटेंस इज लिक्विड, दिस सब्सटेंस इज गैस, कैसे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे? तो आज हम बेसिकली उसके बारे में पढ़ेंगे कि हाउ ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वी कैन आइडेंटिफाई दिस मैटर। ओके, जब तक आप इसको लिख लीजिए, फिर हम क्या कहते हैं, आगे का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसे कि अभी मैंने जो आपको समझाया था, सो होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन के साथ साथ आपने समझ भी लिया होगा कि हम लोगों को इस साल 3 पार्ट पढ़ने हैं केमिस्ट्री के, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। नाउ वी आर गोइंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है? एक्चुअली में है क्या कि हम लोगों ने इनिशियली जब चीज़ें पढ़ते हैं हम लोगों ने पढ़ा कि सर रिएक्टेंट एक होता है और ये होता है दूसरा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, किस तरह से रिएक्टेंट कंबाइन होता है, किस तरह से प्रोडक्ट कंबाइन होता है, मोल क्या होता है, मोलरिटी क्या होती है, हमें ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे। बट एज आई सेड दैट इनिशियली हम जो पढ़ेंगे वो बच्चों क्या पढ़ेंगे? मैटर। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? मैटर क्या है? इट इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। आपके चारों तरफ बच्चों जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड हैविंग मास, और उसके पास मास है, दैट इज कॉल्ड मैटर। लाइक ये चेयर, लाइक ये बोर्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। एंड दिस मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। 11th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोगों को 3 कैटेगरी पढ़नी है। फर्स्ट कैटेगरी है सॉलिड, liquid and then gas. And what is matter? Anything which occupy space and have mass. जिसके पास स्पेस है, मास है, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। 3 कैटेगरी हैं। अगर हम वैसे समझने पर जाएं बच्चों, देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इंटरेक्शन के आधार पर आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। पर सबसे पहले हमें ये जानना है कि सॉलिड क्या होता है। अगर हमने सॉलिड को समझ लिया तो लिक्विड और गैस को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, रिलेशन से, सॉलिड के रिलेशन से लिक्विड और गैस को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ आप लोगों के लिए कि सॉलिड को आप कैसे बताते हो। आप कहोगे कि सर कोई भी चीज़ जिसके पास मास होगा, जिसके पास वॉल्यूम होगा। कैसा मास और कैसा वॉल्यूम? फिक्स, जो चेंज नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि सॉलिड का मास कभी भी चेंज हो सकता है। किसी बर्तन में डालेंगे उसके हिसाब से उसकी शेप बदल सकती है क्या? नहीं बदल सकती। आपने क्या कहते हैं, किसी भी सॉलिड की चेयर है, ऐसा तो नहीं कि एक रूम में रखा तो शेप बदल गई, दूसरे रूम में रखा तो उसकी शेप बदल गई। जो चीज़ अपनी शेप को, अपनी क्या कहते हैं, आकार को परिवर्तित नहीं करती है, विच डज नॉट चेंज देयर शेप, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसके अंदर वो आता है कि सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का फिक्स शेप होगा और वॉल्यूम होगा। ये बहुत ही 10th स्टैंडर्ड के लेवल का है, जिसमें हम ये बताते हैं कि फिक्स शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है। आगे अब इसके बाद जो ये बेसिक चीज़ है, इसके बाद जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि हमें अब किस चीज़ पे जाना है बच्चों? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। हर पार्टिकल के पास क्या होता है, चाहे वो सॉलिड पार्टिकल है, चाहे वो लिक्विड पार्टिकल है, चाहे वो गैस पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है बच्चों, उसके मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के बेस पर ही हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है।
जैसे कि हर पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है, हर पार्टिकल एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। अब उन पार्टिकल्स के बीच में अगर गैप नहीं है, मान लीजिए जैसे सॉलिड है, एक पार्टिकल सॉलिड का ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, ये गैप नहीं है इनके बीच में, क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में वो पार्टिकल जो किसी सॉलिड को, किसी के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, अगर उन पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होगा तो वो पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे। अब उनके बीच में जब स्पेस ही नहीं है तो ना तो वो पार्टिकल मोशन करेगा, ना अपने आप को कहीं दूसरी जगह लेके जा सकता है वो, क्योंकि जब स्पेस ही नहीं है तो मूव कहाँ कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड है, that these particles are also known as intermolecular particles। तो in solid the intermolecular distance, intermolecular मतलब मॉलिक्यूल के अंदर का जो डिस्टेंस है, that intermolecular distance is very short, intermolecular space is very less, there is no space, distance is very less। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स हुए वो कैसे हुए बेटा? बहुत स्ट्रॉन्ग हुए, समझे? तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो जाता है? intermolecular distance is very short, intermolecular forces are very strong। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी बहुत स्ट्रांग होंगे, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होगा, जिससे पार्टिकल्स क्या मूव नहीं कर सकते। जब पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे तो उनकी शेप हमेशा कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी, उनका वॉल्यूम हमेशा कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। तो बच्चों, whenever a question is asked that why solid have fixed shape and fixed volume, जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अच्छे से पकड़ कर रखा हुआ है, जब पकड़ कर रखा हुआ है तो आकार कैसा हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हुए। चौथा पॉइंट, जैसा कि अभी आपको बताया, जब पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ कर रखा हुआ है तो भाई उनको हम और ज़्यादा तो दबा नहीं सकते ना, कंप्रेस नहीं कर सकते। गैस है या लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे फैल जाते हैं, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, छोटे बर्तन में भी डाल सकते हैं, बड़े में भी डाल सकते हैं। तो लिक्विड क्या हुआ? लिक्विड ऐसा हो गया जिसको कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस माने जिसको दबाया जा सकता है, पर सॉलिड को कंप्रेस करके उसका आकार तो नहीं बदल सकते ना आप। लिक्विड तो क्या है? छोटे बर्तन में डाला तो वैसा आकार हो गया, बड़े में डाला तो वैसा आकार हो गया। गैस क्या है? कमरे के अंदर छोड़ दी तो क्या हो गया? कमरे के अंदर क्या हो गया? पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। लेकिन जैसे अगर आप उसको इकट्ठा करोगे तो आप एक कंटेनर में भी डाल सकते हो, गैस के सिलेंडर में भी डाल सकते हो। तो गैस के पार्टिकल्स को आप क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। पर सॉलिड के पार्टिकल्स जिसके बीच में ऑलरेडी कोई स्पेस ही नहीं है तो आप कंप्रेस नहीं कर सकते। तो वी कैन से दैट सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। Solids are rigid in nature. Rigid, what do you mean by the rigid? There is a question asked that why solids are rigid in nature। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों कि सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं। What do you mean by rigidity? Rigidity माने क्या होता है बच्चों? जो रिजिड मतलब जो अपने आप को परिवर्तित ना करे, जो अपने आप को चेंज ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं? रिजिड बोलते हैं। तो हमारा सॉलिड कैसा होता है? रिजिड। रिजिड माने अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, अपने आकार को, अपने वॉल्यूम को क्या नहीं कर रहा? सॉलिड चेंज नहीं कर रहा। तो वी कैन से व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। सॉलिड्स रिजिड किस कारण से रहते हैं? इन्हीं दोनों कारणों से, ड्यू टू शॉर्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, दैट्स व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। सो 2 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बोले, मैं अभी वो मेंशन भी करूंगा कि कौन से 2 क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमारा इन्हीं पॉइंट्स के अंदर है। आगे मैं फर्दर उनको लिखता भी हूँ, बाकी आप ध्यान से देखते रहिए। लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड के हर एक मैटर जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों? इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स हैं, सबके पास पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस है तो पार्टिकल क्या कर सकता है? मोशन कर सकता है। अगर मेरे पार्टिकल, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तो मेरा पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर सकता है? मोशन कर सकता है, वो ट्रैवल कर सकता है। लेकिन सॉलिड के केस में क्या हो रहा है? सॉलिड के केस में क्या हो रहा है? चलो बच्चों, सॉरी इंटरेक्शन के लिए अभी थोड़ा सा क्या कहते हैं
कॉल अटेंड करनी थी इसलिए। एनीवेज, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ कि जो ये रिजिडिटी वाला क्वेश्चन है, या मैं जो बताना चाह रहा था कि अगर भाई मेरे दो पार्टिकल्स हैं, ये एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, अब अगर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा तो ये जो मेरा पार्टिकल है यार, ये यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी मूव कर सकता है कि मोशन में आ सकता है, कहीं भी फ्लो कर सकता है। जब मेरे पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं होगा, ये लोग शायद आपको दिखे भी नहीं, ये गैप ही नहीं है मेरे पार्टिकल्स के बीच में, जब गैप ही नहीं होगा तो अब ये मोशन कहाँ करेगा? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब इस तरह के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। जब इस तरह के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है तो वो लिक्विड। जब पार्टिकल्स के बीच में और ज़्यादा गैप आ जाता है, यहाँ से अगर आपको दिखे, वहाँ क्लियर नहीं आए, तो यहाँ अगर पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा गैप आ गया तो ये क्या हो जाएगा? गैस। जितना ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा वो गैसियस में, जितना कम होगा या नहीं होगा दैट इज कॉल्ड सॉलिड। एंड ड्यू टू दिस इंटरमोलिकुलर स्पेस, सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जो मैं क्वेश्चंस आपको भी बताऊंगा। तो जो छठा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था सॉलिड की कैटेगरी के बारे में, कहता द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वाइब्रेट, कि नीचे का वीडियो में पता नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा इसको, वाइब्रेट एट देयर ओन पोजीशन। ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी ही पोजीशन पे क्या करेंगे बच्चों? वाइब्रेट करेंगे। अगर ये पॉइंट ढंग से क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट एट देयर ओन पोजीशन। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं बच्चों वो अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं है तो वो आगे मोशन नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी ही पोजीशन पे वो वाइब्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारे 6 पॉइंट्स हैं। ये 6 पॉइंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी हैं। इन्हीं 6 पॉइंट्स के थ्रू हम बता सकते हैं। अब मैंने जो आपसे इनिशियली बोला, मैंने क्या बोला आपसे कि अगर मैं सॉलिड को पढ़ लेता हूं तो मुझे लिक्विड और गैस के पॉइंट्स को डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, बट लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। मतलब क्या हुआ कि लिक्विड का आकार जो है वो कैसा नहीं है? फिक्स नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। 1 लीटर वॉल्यूम है, चाहे मैं उसको कटोरे में डालूं चाहे मैं उसको टब में डालूं, वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा, पर आकार क्या हो जाएगा? जैसे बर्तन में डालोगे, जैसा पदार्थ, जैसा मेटल यूज़ करोगे वैसा उसका आकार होता चला जाएगा। तो लिक्विड का आकार फिक्स नहीं होता और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो जब तक आप ये नोट कर लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए आपको नोट करने का टाइम देता हूँ, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा लिक्विड के बारे में स्टडी करूँगा और फिर गैस के बारे में। ओके, तो बच्चों जैसे कि आपको मैंने थोड़ा सा समय दिया था ताकि आप नोट डाउन कर रहे हैं, होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, अटेंशन भी पे किया होगा, चीज़ों को समझा भी होगा। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग के दोज थिंग्स विच आई हैव मेंशन कि ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हैं, बट द थिंग इज कि बेसिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम यहीं से इंटरेस्ट बनाएंगे तो पूरी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रहेगा। आराम से थॉरोली चीज़ों को समझिए, डेडिकेशन पे कीजिए, हर चीज़ समझ में आएगी। तो जैसा मैंने अभी आपको सॉलिड के बारे में बताया, अच्छा मैं आपको 2 क्वेश्चन और मेंशन करना चाहता हूँ जो सॉलिड से रिलेटेड थे। मैंने आपसे कहा था उन क्वेश्चनों को नोट डाउन जरूर कर लीजिए, और आंसर कहाँ से? उन्हीं 6 पॉइंट्स में से आंसर आपको मिलेगा जो मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका था। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम क्यों होता है? बिकॉज दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वेरी लेस इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड? सेम आंसर, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लेस, intermolecular interaction very high. They have strong intermolecular forces and very less intermolecular distance. तो these are the 2 things, 2 questions जो हमने ऑलरेडी जो पढ़ाया है आपको, उन्हीं पॉइंट्स में से आपको यहाँ मेंशन करना है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वाला, इंटरमोलिकुलर स्पेस वाले पार्ट्स को लेकर अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे गैस लिक्विड के पॉइंट्स बच्चों। तो हम बात करते हैं लिक्विड की।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सॉलिड के पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से याद हैं, अच्छे से समझ में आ गए, तो लिक्विड्स के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, लिक्विड क्या है, मैंने आपको क्या बताया, फिक्स्ड शेप नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो सिर्फ और सिर्फ इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा एंड नॉट फिक्स्ड शेप। शेप फिक्स नहीं होगी। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा पानी को जिस भी बर्तन में डालोगे उसका आकार बदलता चला जाएगा, पर वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहेगा, तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उसका। सेकंड, जो कि हमारा सॉलिड से ही निकल कर आता है, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा हो गया? सॉलिड्स के मुकाबले लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो गया बच्चों? ज़्यादा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक एज कंपेयर टू सॉलिड, पर एज कंपेयर टू गैस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो आपको यहाँ पे सॉलिड और गैस दोनों को समझना है क्या, कि अगर मैं बात करता हूँ गैस इंटरमोलिकुलर स्पेस की, अगर मैं इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करूँ तो इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा? लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। गैसेस के अंदर पॉइंट्स देखिएगा, मैं अभी जो मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट्स को थोड़ा देखिएगा कि अगर लिक्विड में एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो गैस के अंदर क्या होगा बच्चों? एक पॉइंट यहाँ होगा तो एक पॉइंट और ज़्यादा दूर हो सकता है, गैप ज़्यादा होगा। तो ये क्या मतलब हो गया? इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या हो गया? लिक्विड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है और गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है। तीसरा, स्पेस के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसे होंगे? जब स्पेस ही ज़्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। स्पेस इज मोर, अट्रैक्शन इज लेस अट्रैक्शन। क्योंकि अगर चीज़ अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन माने आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना, जब क्या कहते हैं डिस्टेंस ही ज़्यादा हो गया बच्चों, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन तो मिनिमम हो जाएगा। और जब अट्रैक्शन मिनिमम हो जाएगा तो पार्टिकल्स का जो आकार होगा वो तो फिक्स रहेगा ही नहीं, वो परिवर्तित होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। तो डेट्स वाई वी कैन से दैट। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन लिक्विड्स के अंदर क्या होगा? लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस। तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सॉलिड से तो कम होगा, पर गैस के मुकाबले इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन कैसा होगा? गैसेस के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो क्लियर सी बात है, समझ में आ रहा होगा क्या कि भाई किस तरह से जो मेन ये जो दो चीज़ें हैं बच्चों, ये जो दो चीज़ें हैं स्पेस की, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स की जो दो चीज़ें हैं, यही हमें बताती हैं कि शेप फिक्स्ड होगी नहीं होगी, वॉल्यूम फिक्स होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन भी आता है कि रिजिड कौन होगा, कंप्रेसिबल कौन होगा। अब हमने एक सॉलिड में पॉइंट लिया था, आपको याद होगा, मैंने बोला था कि भाई पार्टिकल्स के बीच में जब गैप ही नहीं होता तो वो कंप्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑलरेडी अपने आप में कंप्रेस्ड है, तो इनकम्प्रेसिबल कहलाएंगे। लेकिन लिक्विड और गैस के केस में क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में क्योंकि स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या होंगे? दोनों के दोनों ईजिली कंप्रेसिबल होंगे। लिक्विड जो होगा वो गैस के मुकाबले कम कंप्रेसिबल होगा, गैस जो होगा वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा। जो क्लियर हो रही है इन दोनों पॉइंट से। अगर कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जैसा कि हमने सॉलिड का क्वेश्चन बताया, अगर ऐसा ही कोई लिक्विड में भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, व्हाई गैस आर कंप्रेसिबल, अगर लिक्विड और गैस कंप्रेसिबल के बारे में पूछते तो आपका आंसर क्या होगा? बिकॉज दे हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, दे हैव लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, they have very weak intermolecular interaction. The same points which we have discussed in solid you can put in liquid and gas, the intermolecular interaction. So last point, liquids are compressible, we can compress them. compress का मतलब जो मैंने आपको बताया, compress का मतलब जिसको हम दबा सकते हैं, किसको दबाया जा सकता है, किसके आकार को परिवर्तित किया जा सकता है, तो that is called compressible point. तो ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर आएंगे लिक्विड के अंदर। इसी तरीके से जो मैंने इसी में मिक्स कराया आपके साथ गैस को भी आपको मैं थोरोली यहीं पे डिस्कस करता हूँ। गैस के अंदर क्या होगा? बस जो पॉइंट चेंज होगा वो क्या चेंज हो जाएगा गैस के अंदर? गैसेस को अगर हम लें, इसके अंदर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है पर शेप फिक्स नहीं होती। गैस के अंदर क्या हो जाएगा? नॉर फिक्स्ड शेप नीदर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो उसका फिक्स्ड शेप होता और ना ही उसका फिक्स्ड
वॉल्यूम होता, ना तो उसका आकार ही ठीक होगा, ना ही तो आकार ही उसका फिक्स होगा, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में लार्ज जो स्पेस है वो भी बहुत लार्ज होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है बच्चों वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो गैसेज और लिक्विड और सॉलिड, और जनरली हमें जो स्टडी करना है, अगर हम एक बार सॉलिड को स्टडी कर लेते हैं तो लिक्विड और गैस के पॉइंट्स को हम वहाँ से ही फॉर्म कर सकते हैं। अब इसके लिए एक क्वेश्चन, जब तक आप इसको नोट करिए, थोड़ा नोट करके फिर मैं एक दो क्वेश्चन इसमें बताता हूँ, लिखिए आप, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पॉज दिया था, थोड़ी देर का समय दिया था आपको नोट डाउन करने का, उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट भी किया होगा, समझा भी होगा। तो आज की जो ये क्लास है ना, सिर्फ एक बेसिक है केमिस्ट्री के बारे में कि हम इस बार क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या है। मैंने जो आपको बताया था ना कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री इस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको मैंने इनिशियली, अगर आप जाओगे बैक देखते हो अपने पॉइंट्स को, तो मैंने आपको क्या लिखा था कि फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द इंट्रैक्शन, डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स। तो हमने सारा का सारा क्या पढ़ा इसके अंदर, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के बारे में, किस तरह से सॉलिड फॉर्म हो रहा है, किस तरह से लिक्विड फॉर्म हो रहा है, कैसे गैस फॉर्म हो रही है, साथ में कोई रिजिड क्यों है, रिजिड का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स क्या होते हैं। बच्चों ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं जो आपको याद करने, इससे पता लगेगा कि भाई हमारा बच्चा केमिस्ट्री जानता है, केमिस्ट्री के पॉइंट्स जानता है। दो तीन चीज़ें तो आपको ये याद रखनी पड़ेंगी, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में बिठानी है। कोई भी इंट्रैक्शन होगा, जब भी इंट्रैक्शन की बात आएगी, जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म करने की बात आएगी, जब भी कोई बॉन्डिंग की बात आएगी, बॉन्डिंग क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चीज़ों में अट्रैक्शन हुआ, बॉन्ड फॉर्म हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो जब भी हम बॉन्डिंग की बात करेंगे बच्चों, तो आपको बार बार इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोलना पड़ेगा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपको इंग्लिश में याद रखनी है और ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन को लेकर। तो अब जैसा मैंने आपसे अभी छोड़ी थी क्लास, जब बताया था आपको भी कि भाई हम जो दो क्वेश्चंस, जैसे हमने सॉलिड पढ़ा, तो सॉलिड के बारे में मैंने आपसे क्या कहा, वाई सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, वाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो वहीं ऐसे लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो किसके बेस पे आप आंसर दोगे, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन के आधार पर ही आप सारे आंसर दे सकते हो। कॉन्सेप्ट पढ़ लो, आंसर पता लग जाएगा कि यार हमें तो जो आंसर देना वो तो इंट्रैक्शन के बेस पे देना है। तो जब भी फिजिकल केमिस्ट्री की बात होगी तो ये इंट्रैक्शन है। आगे और भी चैप्टर्स आएंगे, या आगे जब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे तब भी आपको पता लगेगा कि कैसे एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, कैसे मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारे गैसेस के अंदर और लिक्विड के अंदर आप क्या कह सकते हो, लिक्विड में आपसे क्या पूछेगा कि वाई लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल इन नेचर, वाई लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल इन नेचर। हम इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल इन नेचर, जो गैस है या जो लिक्विड है ये दोनों के दोनों कंप्रेस कैसे हो सकते हैं। कंप्रेस का मतलब समझिए, कंप्रेस माने दबा कैसे सकते हैं, इनके पार्टिकल्स को हम पास पास कैसे ला सकते हैं। आंसर क्या होगा, आप ये कहोगे कि सर क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, गैस के पार्टिकल के बीच में जब गैप ज़्यादा है, जिस चीज़ में भाई गैप होगा तो उस चीज़ को तो प्रेशर करके अट्रैक्ट करके पास पास लाया जा सकता है ना। लेकिन सॉलिड के केस में क्या था, सॉलिड के केस के पार्टिकल के बीच में तो गैप ही नहीं था। जब गैप ही नहीं होगा तो आप अट्रैक्ट कैसे कर पाओगे, वो तो ऑलरेडी मैक्सिमम अट्रैक्टेड है ना, मैक्सिमम एक दूसरे के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि वाई सॉलिड्स आर कंप्रेसिबल नेचर, वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल नेचर। आपका आंसर क्या होगा, बिकॉज लिक्विड्स एंड गैसेज, लिक्विड एंड गैसेज हैव large space between the intermolecular particles। क्योंकि लिक्विड और गैसेज, यही क्वेश्चन गैस के लिए भी बन सकता है। दैट्स व्हाई आई एम रेगुलरली सेइंग गैसेज। मैं बार बार गैस का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम है, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज लिक्विड्स और गैसेज हैव लार्ज स्पेस बिटवीन द इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स। जब उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होगा, तो आराम से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कंप्रेस कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, वाई लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट
बट नॉट डेफिनेट शेप। लिक्विड्स के पास डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती? वाई दे डज नॉट हैव डेफिनेट शेप? तो डेफिनेट शेप क्यों नहीं होती? क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। अगर मैंने बर्तन का आकार बदल दिया, छोटा बर्तन ले लिया, पतला बर्तन ले लिया, तो पतले बर्तन में क्या होगा? पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। चौड़ा बर्तन ले लिया तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। इसकी वजह से लिक्विड्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, बिकॉज वही आंसर, बिकॉज दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम। लार्ज स्पेस बिटवीन दैम। बिटवीन दैम में क्या लिखे हैं? बिटवीन दैम का मतलब क्या हो गया बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स। जो बिटवीन दैम है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स बोलेंगे, तो उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो यह हमारा जो आज का जो क्लास है उसमें हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास। मैटर को हम कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के 6 पॉइंट्स जो हमने आपको बताया कि 6 पॉइंट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा सॉलिड है। उन्हीं पॉइंट्स को चेंज करते हुए, स्पेस को चेंज करते हुए, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को चेंज कर सकते हो, हम कह सकते हैं कि ये लिक्विड है। उसी में हम कह सकते हैं कि ये गैस है। तो ये हमारी एकदम बेसिक चीज़ें थी बच्चों, जिसके आधार पे हमने जाना कि पार्टिकल्स होते कितने तरीके के हैं, कैसे कैसे वो कंबाइन होंगे। अगली क्लास के अंदर हम क्या पढ़ना चाहेंगे? अगली क्लास में हम इनके इंटरेक्शन को पढ़ेंगे, कैसे कैसे ये जो सॉलिड है इसको हमने डिवाइड किया, मिक्सचर क्या होता है, प्योर सबस्टेंस क्या होता है, लॉस क्या होते हैं। तो अगली क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा लॉस का, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन फोर्सेस। जो ये कंबाइन हो रहे हैं ना पार्टिकल्स, वो किस लॉ के अंतर्गत कंबाइन होते हैं, इक्वेशंस कैसे फॉर्म होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन जो होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग, आज का एकदम बेसिक था, नेक्स्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा जिसमें हम लॉस को पढ़ेंगे, फिर फर्दर आगे इस चैप्टर को डील करेंगे। तो होप आप इन सारे टॉपिक्स को स्टडी करके रखेंगे, जो आज आपको पढ़ाया गया है उन क्वेश्चनों को भी नोट डाउन करके रहेंगे, याद करके रहेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम फिर आगे का कंटेंट लेते हैं। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।